So I want you to try the question first. Let me just explain what we are doing with the question, and we'll do stepwise. I'll keep on pausing and giving you time to do it yourself. So there is a company that is based in Germany, and the subsidiary is located in a country called Fast Furious. I have changed these names. So there is an automobile company, Auto Inc. in Germany, and there is a tire subsidiary, and they are in the tire is in a make-believe country, Fast Furious. Fast Furious was acquired by Auto Inc. So Fast Furious is a subsidiary, Auto is a holding. Okay. Now the currency in Fast Furious is Caro, CR. So this is a make-believe country, make-believe currency. Caro comes from car. Just put in like that. So you've got 2 years of data, end of year 1 and end of year 2 data is provided. The balance sheet details are provided, and the currency, if you notice, balance sheet, the data is provided in the CR currency. So that is your subsidiary's local currency. So CR is the local currency of the subsidiary. Your presentation currency has to be equals to euro, right? So this is equal to euro. Achha. Now the retained earnings at the end of year 1 is in the euro currency is provided. Please note it is in euro that is provided. The retained earnings in your at the end of year 1, because I will need the opening balance in the reporting currency to create this year's ending balance sheet. Okay, you just notice that it is in euro, not in CR. Okay, all right. Now the income statement is also provided in the local currency of subsidiary CR, and during the year 2, the PL account data is provided. Okay. Now the data has been provided. Now the exchange rates are given. End of year 1, 31st December year 1 and 31st December of year 2. Average rate for the year 2 is also given. Historical rate for equity, for property, plant, equipment, and obviously if nothing is also, even if nothing is mentioned, we'll assume that depreciation historical rate to be as good as property and plant equipment historical rate. Then beginning ending inventory rate historical rate is also given. Purchases and sales are assumed to be made evenly throughout the year. That means we need to use purchase sales average rate, because it is evenly throughout the year. Now the question is, we are going to try as if it is an independent entity or as if it is dependent to the on the parent for the decisions. So if it is independent, which method do we follow? Current method. So the first part of the question, we are going to follow current. And second part of the question, if it is dependent or integrated, in that case, we'll be following the temporal method, right? So now, how do we start with the current rate method? We start with PL or balance sheet. PL, we translate PL at average rate. Balance sheet, everything except totally, including total equity, but except the components of total equity is at the current rate. Within total equity, then we'll have to figure out, use the method that we've done, try to do till here, and then I will do the question for you. Let's see. We'll do the current rate method first, which is going to be much, much easier. So when we are looking at the income statement, so we'll start with the PL account first, income statement, whatever you call it. So we have our sales, we've got COGS, we've got gross margin, other expenses, depreciation, net income. इसमें जो भी आपके नंबर्स हैं, they are all going to be, हम लोग कौन सा रेट यूज करेंगे? We are going to be using, sorry, current rate लिख रहा था मैं गलत, average rate. अच्छा, नंबर लिख दूं सम पूरा, ठीक है? I know, but I'm doing it in a particular way. Let's see if I can put it this way. Guys, ये CR currency है आपका. Current method के केस में अपने कौन सा exchange rate यूज करेंगे? Average rate for the entire thing.
देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, आप ग्रॉस मार्जिन को नहीं कन्वर्ट करते एवरेज रेट पे, वो बैलेंसिंग फिगर आता है। बट बाय डिफॉल्ट दिस विल आल्सो टर्न आउट टू बी एवरेज रेट, दिस विल आल्सो टर्न आउट टू बी एवरेज रेट, बट हम लोग उसको मतलब वी डोंट से दैट वी आर कन्वर्टिंग नेट प्रॉफिट एट एवरेज रेट, अपने कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा वो आएगा। बट इफ एवरी कंपोनेंट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द एवरेज रेट, देन जो ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट होगा वो भी एवरेज रेट पे आएगा, राइट। सो एवरेज रेट कितना दिया हुआ है अपने लोग को फॉर द ईयर? 0.235 यूरोस। अच्छा, अभी वो कन्वर्जन में प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। 0.235 CR पर यूरो, 1 यूरो का इतना है, तो ये हम लोग का ऑलरेडी CR रेट दिया हुआ है। सो इफ आई नीड यूरो, दीज मैनी CR इनटू 1 यूरो में पॉइंट, नहीं वो उल्टा लिख दिया, तभी मैं सोच रहा हूं 0.235 ना। अच्छा एक बार प्लीज, प्लीज समझो, वी आर फ्रॉम जर्मनी और वी आर फ्रॉम फास्ट फ्यूरियस? नहीं, फास्ट फ्यूरियस कंट्री का नाम था क्या कुछ? अच्छा कंट्री, अच्छा सब्सिडरी वाज टायर। सो मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा? आई विल थिंक फ्रॉम अ रिपोर्टिंग करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, होल्डिंग कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं जर्मनी का हूं, मैं अगर जर्मनी का हूं तो मेरे को यूरो का प्राइस, यूरो इज द प्राइसिंग करेंसी, द लोकल करेंसी और द सब्सिडरी का करेंसी इज गोइंग टू बी माई बेस करेंसी। करेंसी में प्लीज गड़बड़ नहीं करना। आई एम फ्रॉम जर्मनी, आई एम कन्वर्ट, मेरा सब्सिडरी है बाहर, उसको मैं कन्वर्ट करके अपने करेंसी में ला रहा हूं विच इज यूरो राइट नाउ। सो देयरफॉर एक CR का कितना? 0.235 यूरो, तो 11,000 CR का कितना? 11,000 इंटू 0.235, सो दिस मल्टीप्लाई होगा, सो ये AR से मल्टीप्लाई करके दैट इज, आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट बाद में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। यू कैन डू ऑल दीज नंबर्स या डिक्टेट कर दो ना, इजी होगा। वाह, ए करो, डायरेक्ट बताओ एक बार पहले। 620.40, 40 ही है ना कि तुम राउंड ऑफ किए हो? 40, सो 2640 इंटू 0.235, ये गेटिंग 620.4 इज योर नेट इनकम। गाइस गाइस हियर 620.4 इज योर नेट इनकम। इसका जो डिटेल होगा वो नेक्स्ट डे देना, बिकॉज आई वांट टू प्रेजेंट इट इन अ नाइस मैनर। मैं इसके अगेंस्ट में ही तुम्हारा ट्रांसलेशन मेथड भी करूंगा, एंड देन वील ट्राई टू मेक कंपैरिजन एंड रेशियोज एंड ऑल दैट लेटर ऑब्वियसली, बट पहले एक बार सम ही करना है खाली। सो ठीक है, इतना जगह में हो जाएगा। तो माई नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी, अच्छा टेम्परल नहीं कर रहे ना, पहले करंट ही कर रहे हैं खाली। ठीक है, सो करंट में अपना ये तो आ गया नेट इनकम। वी स्टार्ट विद नेट इनकम, क्योंकि नेट इनकम को बैलेंस शीट में लेकर के जाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट में सिंस मेरे पास जगह नहीं है, मैं 2 रो में कर दूंगा पूरा चीज। एक एसेट्स का रो बना देता हूं, या आ जाएगा लाइबिलिटी। एसेट क्या क्या है बोलना शुरू करो। अच्छा नहीं तो मेरे पास है। ये सब से क्या होता है ना, आलस कर रहे हो, बट व्हाट हैपेंस इज दैट फॉर्मेट समझना, प्रैक्टिस होना, दिस इज ऑल गुड इफ यू डू इट। डिपेंड्स ऑल्सो। हाँ आई डोंट थिंक और जगह होगा, लाइबिलिटी अटेगा एक में, नहीं अटेगा।
एक बार अमाउंट्स बता देना ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन अ फॉर्मेट नाइसली फॉर यू गाइस। सो अमाउंट्स एक बार स्टार्टिंग से बताओगे, ये वाला। अच्छा हाँ ठीक है। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये वाला भी बताओ ना। हम्म। अरे इसमें तो लोकल करेंसी में तो लिखेगा ही एक बार के लिए, मतलब क्या? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। So this is my balance sheet in the currency CR. इसको कन्वर्ट करना है मेरे को। Obviously when I'm looking at the current method and temporal करूंगा इसी में, in a while, right? I'm looking at so current rate method में ये पूरा का पूरा AR है, सॉरी करंट रेट है, दिस इज करंट रेट। ओ ये CR वापस, करेंसी नहीं लेना चाहिए था ऐसा। इसको नहीं करते आइडियली, ऑल्दो होगा ये बाय डिफॉल्ट, बट इसको नहीं करते। कंपोनेंट्स को करंट रेट पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, टोटल्स का कॉलम को नहीं कर रहे हो। यू नो दीज आर स्मॉल थिंग्स यू हैव टू लर्न। ये तुम लोग को लग रहा होगा इतना टाइम स्पेंड करके आई एम डूइंग दिस, एट टाइम्स इट्स ओके, मतलब कभी कभी चलता है, बट प्रैक्टिस, ये जो जर्नल्स और ये सब किया है ना स्कूल के समय पर, दिस ऑल वर्क्स इन योर फेवर। बिकॉज नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू वर्किंग विद फाइनेंशियल मॉडल्स एक्सेल पे, तो वो बोल्ड करना, लाइन छोड़ना, वो कहाँ टोटल आ रहा है, इंडेंटेशन करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये फिर मतलब डेटा बोलेगा आपको, मतलब व्हेन योर फॉर्मेट एंड ऑल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना होगा वे यू नीड टू डू इट रफ, वे यू नीड टू डू इट वेरी वेल फॉर्मेटेड। यहाँ थोड़ा सा लिख दिया मैंने। सो करंट रेट्स अभी नहीं लिख रहा हूँ, ऑल द करंट रेट्स आर इक्वल टू, करंट रेट इज इस ईयर का एंड विच इज 0.202। तो 0.202 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस, वो आप बाद में भरना। इसका टोटल बताना आंसर कितना आएगा, तुम लोग वही किए हो मेरे हिसाब से, यह है पूरा, बताओ। इस, हाँ, सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन दिस एंड दिस टेकन, ये तीनों का टोटल ये आना चाहिए, दोनों का टोटल ये माइनस ये आना चाहिए। अगर कभी मन करे तो माइनस भी लिख सकते हो, या यू कैन, कई बार ये भी होता है दोनों नंबर्स अंदर लिखते हैं, इस कॉलम में लिखते ही नहीं है, प्रेजेंटेशन वाइज एंड ऑल, वो सब देख सकते हो। एनीवेज ऑब्वियस सा बात है कि इफ यू आर गिवन द टोटल आंसर वील मल्टीप्लाई डायरेक्टली, आई जस्ट वांट टू डू द फॉर्मेटिंग, मतलब प्रेजेंट करने का मन है सारा चीज। वैसे टोटल लायबिलिटी ये भी बता दो फिर, वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग एट करंट रेट, ऑटोमेटिकली आएगा। ये अब पूरा प्रॉब्लम होगा, ये करंट रेट पे आएगा ही आएगा, अदरवाइज आपका बैलेंस शीट कैसे टैली करेगा। दिस हैज टू बी 1540.25
दिस हैज टू बी 1540.25, अदरवाइज द बैलेंस शीट विल नॉट टैली। और आपने ये डिसाइड कर लिया था कि ये तीनों करंट रेट होगा। दिस हाउ मच, दिस हाउ मच 740.33। अच्छा, कॉमन स्टॉक डिसाइडेड है ये हिस्टोरिकल रेट पे होगा। इसका हिस्टोरिकल रेट क्या दिया हुआ है? 0.25 दिया है इधर। हाँ, हिस्टोरिक रेट फॉर इक्विटी इज 0.25। तो अगर ये 0.25 है, दिस बिकम्स ऑलराइट। सो नाउ दिस प्लस दिस हैज टू बी इक्वल्स टू दिस। देयर इज नो चॉइस। अगर मेरा टोटल एसेट ये है तो टोटल इक्विटी मतलब लाइबिलिटी प्लस इक्विटी हैज टू बी दिस। टोटल लाइबिलिटी इतना ही होगा करंट रेट पे। कॉमन स्टॉक हिस्टोरिकल रेट पे लेना होगा। टोटल इक्विटी हैज टू बी करंट रेट। मैं पहले दिस माइनस दिस करके ये निकालूंगा, कितना आएगा? 9.2। तो ये बैलेंसिंग फिगर आया। दिस हैज टू बी दिस -740.33 करके ये आ गया। अच्छा, अब अगर ये आया है तो रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। दिस -258.75। दिस इज हाउ मच? अरे यार, ओपनिंग बैलेंस थोड़ी पूछ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा हूं तुम लोग को। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, रुको, अभी इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये रिटेन्ड अर्निंग से कैसे आगे बढ़ेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी एबल टू कैलकुलेट माई रिटेन्ड अर्निंग्स। लेट्स सी। So my retained earnings over here is equal to opening balance कितना 71। उसके बाद में प्लस नेट प्रॉफिट इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है? कहाँ गया? ओ 620.40 minus dividend, which is nothing is given, we'll take it 0. There is no mention of it. In fact, if you notice, your retained earnings 2925 है। आप एक बार दोनों बैलेंस, मैंने तो क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है खाली यहां पर, आप एक बार ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों देखो। आपका ओपनिंग बैलेंस 285 था, 285 प्लस 2640 नेट इनकम, दोनों लोकल करेंसी देख रहा हूं, इज इक्वल टू 2925। या ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। इसका मतलब डिविडेंड जीरो होगा, वो भी वर्कआउट कर रहा है। एंड एनीवेज देयर इज नो डेटा गिवन, आई एम अज्यूमिंग डिविडेंड जीरो, डिविडेंड का कोई डेटा ही नहीं है, राइट? आई होप दिस ओके। दीज आर योर लोकल करेंसी, ये लोकल करेंसी है। इस केस में फंक्शनल करेंसी भी यही है। फर्स्ट सिचुएशन जो करंट मेथड यूज करे, फंक्शनल करेंसी ये है। ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रिपोर्टिंग करेंसी में। ये फिगर्स यूरो में है, ये रिपोर्टिंग करेंसी है इन यूरो, राइट? In the first method, we are assuming this is your local currency is your functional currency. Temporal में उल्टा हो जाएगा। ओके, सो डिविडेंड माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? दिस प्लस दिस इज 691.40. So this has to be 691.40. There is no problem with this, but there'll be a balancing figure का issue. कोई बाप रे। अच्छा हाँ ठीक है, हो ही सकता है, ये तो नेगेटिव हो। मेरे को डर लगा कि मैंने सब में गड़बड़ कर दिया। हाँ, दिस कैन बी अ लॉस। अभी ये वर्क करेगा? हो जाएगा, लाइन हिल जाएगा। ये तो इरिटेटिंग है, ये ऐसे तो नहीं आना चाहिए, ये तो और ही खराब है।
ये क्या था? इरेज करके लिख रहा है 258.7569। सॉरी, अरे इसमें कलर भी 4 यूज किया हम। क्या 2 फिर 258.75 691.40। सो 740 का लाइबिलिटी प्लस 799 का इक्विटी 1540। 1540 यहां से आया था टोटल एसेट is total equity plus liability. This minus total liability has to be equal to total equity. Now your common stock plus retained earnings plus but total equity has to be 799, लेकिन ये दोनों का टोटल तो 799 नहीं है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका, दैट इज योर क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, विच इज हाउ मच? माइनस, आई होप दिस ओके। ये कैसे आ रहे हैं नंबर? दिस नंबर इज 799.92। योर टोटल इक्विटी minus common stock 258.75 minus retained earnings 691.40. This is a balancing figure. ये step 1, ये step 2, ये निकाल लो आप लेट्स से step 3 में, और ये फिर आपका step 4 में आ रहा है, राइट? ये 3 का डिटेल्स है। बोलो, आर यू गेटिंग इट? ये इजी है ये मेथड। अब ये करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट लॉस क्यों है, we'll डिस्कस दिस बाद में। बोलो, आर यू फॉलोइंग दिस? इज दिस 100% ओके टिल हियर? श्योर? Alright, this is absolutely fine. Temporal ka, let me just discuss it with you a little bit. So then you will try and come. Sales average पे होगा, cost of goods sold नहीं दिया है. Temporal method is the next step. This one is okay, right? Temporal में क्या करोगे? Sales average पे होगा, other expense average पे होगा. COGS का average rate नहीं कर सकते हो, historic rate होता है, but COGS का historic rate is not given. But COGS is equal to opening plus purchase minus closing. Opening closing का historic is available and it's given categorically कि purchases evenly spread है, तो purchases पे average rate लगा देंगे and opening plus purchase minus closing करके I will be able to get COGS. Depreciation historic rate पे होगा जो property plant equipment का है, लेकिन net income यहाँ नहीं निकलेगा. We'll start with the balance sheet first and then come to PL account in temporal method. Temporal में क्या करेंगे? Monetary क्या क्या है? कैश इज मॉनेटरी, तो करंट रेट. अकाउंट्स रिसीवेबल इज मॉनेटरी, क्योंकि जो अकाउंट जो डेटर से मिलना है उतना ही अमाउंट मिलेगा, एग्जैक्ट उतना ही डॉलर और यूरो और सीआर और व्हाटएवर अमाउंट. दिस इज नॉन मॉनेटरी, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट. अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्टोरिकल कॉस्ट लगेगा, हिस्टोरिकल रेट, सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, हिस्टोरिकल रेट. टोटल करंट एसेट इज अ मिक्स. इसको यू कांट नाउ मल्टीप्लाई डायरेक्टली जो करंट रेट में कर रहे थे, क्योंकि दो अलग अलग रेट हो गया ना बीच में. फिक्स्ड एसेट अगेन हिस्टोरिकल रेट, डेप्रिसिएशन अगेन हिस्टोरिकल रेट एंड नेट फिक्स्ड एसेट. अच्छा, इसमें भी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है लास्ट ईयर का दिया हुआ रहेगा ना, इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड होएगा. We'll see this one. Net fixed asset, total asset आ गया, वो भी मिक्स है हिस्टोरिकल और करंट का. लाइबिलिटी में these are going to be your current rate, because ये भी मॉनेटरी, ये भी मॉनेटरी, ये भी मॉनेटरी. लाइबिलिटी जनरली सारा ही मॉनेटरी रहेगा, तो ये सेम ही आना चाहिए. कॉमन स्टॉक हिस्टोरिकल रेट, ओ जगह ही नहीं छोड़ा. टोटल इक्विटी टोटल एसेट से बैलेंस आ जाना चाहिए. ये और ये बैलेंस शीट तो मैच कराना पड़ेगा, वो बैलेंस लेकर के टोटल इक्विटी बैलेंस आ जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला, टोटल इक्विटी बैलेंस आएगा. तो अगेन कॉमन स्टॉक हिस्टोरिकल माइनस करोगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स का टोटल आ जाएगा. इसमें सीटीए नहीं होता है,
करेक्ट। उसके अंदर फिर नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा, पीएल में नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर लाएंगे, एंड पीएल में जो डिफरेंस आ रहा था अपना, वे वी वर गेटिंग स्टक, मतलब पीएल में दिस वी अंडरस्टूड कि ये करंट रेट है, नहीं, सेल्स थ्रू आउट द ईयर एवरेज रेट है, कॉग्स वी फिगर्ड आउट, अदर एक्सपेंस एवरेज रेट है, डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल रेट है, ये जो प्लग इन फिगर है दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम योर बैलेंस शीट, और इधर जो डिफरेंस एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा टू गेट द टोटल नेट प्रॉफिट टैली, वो रीमेजरमेंट गेन लॉस होगा। ये ट्राई करो, खुद से करो, फिर नेक्स्ट विल डू दिस।